Hello and welcome to my channel Unheard Tales. I'm Divya Gupta and I'm back again with another hot topic. Nowadays, it's very common to see students pursuing their higher studies abroad. और काफ़ी ट्रेंड में है आप इवन इनफैक्ट अगस्त सितंबर के मंथ में अगर आप एयरपोर्ट्स में जाओ तो आप देखो एयरपोर्ट्स जैम पैक मिलेगा विद स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर फ्लाइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज। तो ऐसे ही मौसम में मेरे साथ मेरे शो में आज हैं एक बहुत ही जानी मानी करियर काउंसलर जिनसे हम आज बात करेंगे और जानेंगे और भी डिटेल किस तरह से हम अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। इफ वी आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, व्हेन शुड वी स्टार्ट प्लानिंग फॉर आवर स्टडीज एंड हाउ टू गो अबाउट इट। Our show we have Jyoti Doraiswamy, who is a career counselor, and she will be answering most of the questions which we have in our mind. I surely have a lot of questions about studying abroad, and today we are going to listen to her, and the questions which we have in our mind are going to be clarified by her. So welcome to my show, Jyoti. Thank you. How are you doing today? I'm doing great. How are you doing? I'm doing very good. So I would like to know कि आजकल आप देख रहे हैं काफी ट्रेंड में है, children are preferring to go abroad for studies. So what do you think is the reason behind children's preferring abroad for their higher studies? Global exposure, okay. Career opportunities, Okay. High quality learning, okay. And also the world class university. हर किसी को अभी top universities, world universities में पढ़ने का भी there is a trend for it. There is the students want to go into the best of the best universities. So Jyoti, can you tell us or tell my audience which are the most preferred countries for students when they plan for studying abroad? What are the preferred countries which they look forward to go? So normally students generally prefer to go to US, Canada, UK, Australia. But also that nowadays students are open to study to other countries, European countries like Netherlands or Ireland, Germany is quite in trend, and also countries like Hungary, Spain also. Okay. So do you think that a specific language is needed for going to such countries like especially Germany? Yes, definitely. If students have to go to any of these countries, non-English speaking countries, it is better to learn their native language. Okay. And what do you think is the age when people should start planning for going abroad? If they are planning for studying abroad, what is the correct age जब आपको लगता है कि बच्चों को प्लान करना चाहिए या फिर पेरेंट्स को प्लान करना शुरू कर देना चाहिए कि पढ़ाई करने के लिए अगर अब्रॉड भेजना है तो what should be the starting age? Yes, so तो अंडरग्रेड के लिए अगर जाना हो तो as early as grade 9-10 से शुरू कर देना चाहिए। और अगर मास्टर्स के लिए प्लान करें तो when they're doing their bachelor's program तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही शुरू कर देना चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही शुरू कर देना चाहिए मास्टर्स के लिए आप कह रहे हैं। और काफी सारे लोग जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग तो जैसे 1-2 साल जॉब करके भी जाते हैं, तो इज इट ऑल्सो रिकमेंडेड कितने साल जॉब के बाद मतलब जा सकते हैं? राइट, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते प्रेफर करते कि अंडरग्रेड करने के बाद में अगर जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्पेशली MBA करना हो तो दे वांट अ 3-4 years experience. So what they prefer is like what they do is that they finish your undergrad, take a 3-4 years experience, and then they apply for their MBA program. So there are better chances of getting into better universities. और अगर आप and if you are looking for something like masters, even a year or a 6 months internship or work experience would be good. And आपको क्या लगता है कि जो इसके पीछे जो पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते हैं, obviously it is a very expensive thing to go outside and study. तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे या बच्चे होंगे who comes from a lower middle class or financially not from a very strong background. तो अगर वैसे बच्चे भी क्या बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए? डेफिनेटली। एक तो सारे यूनिवर्सिटीज में इफ यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल तो यूनिवर्सिटीज ऑफर स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड। एक होता है नीड बेस्ड, तो एक होता है फाइनेंशियल नीड बेस्ड और दूसरा है मेरिट बेस्ड। तो based on the financial background of the parents, they do offer scholarships, and कभी-कभी तो 100% scholarships मिल जाता है। 100% scholarship मिलता है। Oh my God, that was absolutely something I did not know about it. तो देखिए 100% scholarship भी मिलता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बाहर जाकर पढ़ना और आपको लगता है because of the financial instability you are not able to plan,
so you can also understand the counseling process and also know about scholarship, and maybe you can go for such हाँ, chances. तो दिव्या इसके लिए ना यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल. Okay. तो अगर आप अपना सीवी एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओगे बाय टेकिंग अप गुड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और रिसर्च प्रोग्राम्स करोगे, हैविंग गुड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे आप बहुत स्पोर्ट्स में यू एक्सेल इन स्पोर्ट्स और एनी आर्ट फॉर्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स और एनीथिंग, सो दैट वुड बी अ गुड वैल्यू एडिशन टू द सीवी एंड विल हेल्प टू गेट गुड स्कॉलरशिप्स टू. ओके तो आप कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप और इन सब चीज़ों का जो प्रोसेस है, जैसे मान लो कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर 2025 में जाकर मुझे पढ़ाई करनी है, तो 2025 के लिए आपको क्या लगता है हमें कब से शुरू कर देना चाहिए प्रिपरेशन? तो जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे लाइक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जिसमें ना बहुत वक्त लग जाता है. तो आप एटलीस्ट लाइक अगर आपको सितंबर तक तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, तो यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज लाइक मार्च, फरवरी मार्च से शुरू कर देंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने कर सकते हैं. और इसके लिए कई बार मैंने सुना है जैसे सैट के एग्जाम देने पड़ते हैं, जीआरई देना होता है, आईएलटीएस के लिए अपियर करना पड़ता है, तो इन सब के प्रिपरेशन भी आप करवाते हैं एज ए काउंसलर? हाँ, हम लोग वी हैव कोचेस फॉर एवरीथिंग, लाइक हर एक टेस्ट के लिए तैयारी कराते हैं हम लोग, भले वो आइल्स हो, जी मैट हो, जीआरई हो या सैट, हर टेस्ट की हम तैयारी करते हैं. तो हर कंट्री की क्या अलग क्राइटेरिया होती है एग्जाम के किस कंट्री के लिए कौन सा एग्जाम देना है? जैसे कंट्रीज जैसे यूके हो गया तो वहाँ पे दे आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट सैट की जरूरत नहीं है. बट कंट्रीज जैसे यूके, यूएस एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज में दे सैट इज मैंडेटरी. दैट्स एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर मास्टर्स के लिए जाना हो तो जीआरई फॉर ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एंड जीमैट फॉर ऑल एमबीए प्रोग्राम्स. तो ये आपको करना. तो मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि आजकल बहुत ही कॉमन है कि आप इंटरनेट पे जाओ, आपको 10 तरह की इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है, आप गूगल करो आपको सब कुछ के बारे में पता चलता है, बट कई बार बहुत सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होते हैं या अप टू डेटेड नहीं रहते हैं. तो जैसे अब यूनिवर्सिटी ने इस साल कुछ और बोला और नेक्स्ट ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है, और हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर आप देखो, सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ो एंड देन यू कम टू नो अबाउट इट. एंड हर कॉलेज के या हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया भी अलग होते हैं, कंट्री के भी अलग होते हैं. तो उन सारे केसेस में मुझे लगता है काफी सारा कंफ्यूजन मुझे लगता है मतलब है लोगों के मन में, पेरेंट्स के मन में. इवन स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी क्लियर ऑन हाउ टू अप्रोच फॉर गोइंग फॉर ए कंट्री, बिकॉज दे माइट लिसन टू सम ऑफ देम फ्रेंड और कुछ ये सुन लिया कुछ उधर का सुन लिया, तो वो मिक्स एंड मैच हो जाता है. तो आप ऐसे एटमॉस्फेयर में क्या रिकमेंड करते हो कि अगर किसी को बाहर पढ़ने के लिए परस्यू करना है तो क्या करेक्ट अप्रोच होना चाहिए? जैसे हम स्कूल जाते हैं और जाकर जैसे 12th की पढ़ाई तक हमें पता है कि ये करना है, बट उसके आगे का करियर वी आर नॉट एबल टू प्लान. तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि व्हाट कैन बी द ब्रिज टू फिल दैट गैप इन बिटवीन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू से दिव्या कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन गूगल, बिकॉज ऑफ विच इट्स अ कंप्लीट मेस हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, व्हाट इज फेक, एंड वी रियली डू नॉट हैव क्लू अबाउट इट. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गो टू अ काउंसलर, ओके, हु कैन गाइड यू कंप्लीटली. दे विल फर्स्ट चेक योर प्रोफाइल के बेसिस में कौन से कॉलेजेस अप्लाई करना है, एंड बेस्ड ऑन दोज कॉलेजेस उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है हर एक कॉलेज की, वो लोग आपको गाइड करेंगे. ये मुझे लग रहा है आप बहुत सही बात कह रही हैं ज्योति, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे मन में काफी डर रहता है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हमें लगता है मे बी आवर स्कोर्स आर नॉट परफेक्ट और वी हैव नॉट टॉप्ड अ यूनिवर्सिटी, सो मे बी वी आर नॉट at par with students who are applying for those university, but who knows कि we already have those credentials where you could apply for the university. Correct. So I think you are doing a very good initiative Thank you. of helping and giving such counseling. So first and foremost, it's very important that you build a strong profile. और एक बार वो प्रोफाइल बन जाएगा तो go to a counselor, they will let you know how. अभी जैसे हम ही खुद क्या करते हैं, पहले देखते हैं बच्चों का कैलिबर क्या है, देखे उसमें और क्या कर सकते हैं. If they have potential to go into a better good university, top universities, तो वो थोड़ा सा हम गाइड करेंगे तो वो फिर उनका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाता है, and they can apply to foreign top universities. So and then also getting scholarships are also quite possible. Yeah. तो आप स्कॉलरशिप दिलाने में भी मदद करते हैं? यस. तो हमारे जितने बच्चे हैं और सक्सेस स्टोरीज है, जितने बच्चे अभी तक हमारे अब्रॉड गए हैं, दे हैव ऑल गॉन विद अ स्कॉलरशिप.
and my God. it's a good nice decent amount of scholarship and like 30 से लेके 40% to 60% तक scholarships में बच्चे 60% तक हाँ, मिलता है. right. Oh my God. So that is something a very good thing to know. So I think आप इसके लिए आप कह रहे थे कि आप कुछ ऐसा काउंसलिंग फेयर भी आप रखते हो. Right. तो वो वैसे फेयर्स का आप डिटेल बता सकते हैं मेरे ऑडियंस को? Right, very much, Divya. So we have an upcoming Ed Fair which is coming, Global Education Fair, and which is on the 1st of September on Sunday और evening के time में, तो 5 to 8 is the timing. So I would request all of the students to come and attend क्योंकि वहाँ पे you will get to meet all the coaches, you will get to meet the bankers from who are providing this education loan, और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो available होंगे वहाँ पे जिनके साथ आप interact करके और Wow, that's a very good opportunity because I think बैंकर्स और लोन का जो आप कह रहे हैं कि आप उनको भी एक ग्राउंड में बुला रहे हैं, तो दैट इज आई थिंक अ वेरी लाइक अ चेरी ऑन द टॉप बिकॉज दैट इज समथिंग पीपल आर स्केयर्ड ऑफ. हम पढ़ाई के बारे में प्लान कर लेते हैं, आधे टाइम तो हम इसलिए बैक ऑफ कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है फाइनेंसेस तो मैनेज ही नहीं हो पाएगा. तो अगर आप लोन और बैंकर सब वहाँ सॉर्टेड रहेगा तो आई थिंक उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब आप जाकर अपने करियर के बारे में सोच सकते हो, एटलीस्ट प्लान कर सकते हो. देयर इज नो हार्म इन अटेंडिंग सच इवेंट. तो मैं बोलूंगी कि अगर ऐसे इवेंट्स आपके आसपास हो रही, जैसे ये इवेंट तो थाने में ही हो रही है, रोडास में, राइट? रोडास, तो रोडास में हो रही है, हीरानंदानी रोडास में, तो यू शुड गो एंड अटेंड इट. तो इस इवेंट की जो सारी डिटेल है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मे भी है, और ये जो इनकी वेबसाइट की लिंक है वो ऑलरेडी इसके ये जो इट्स गिवन बिलो इन दिस लिंक. तो आप इस लिंक पे जाइए, इनके वेबसाइट को विजिट कीजिए. दे आर देयर 24/7 टू हेल्प यू आउट विद एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू स्टडीइंग अब्रॉड एंड ऑल्सो मच मोर अबाउट करियर in any dimension. If you want to mold your career, you can connect and you are at the right place with mature hand. Right. And I have a final message here is that, don't wait for grade 10 to get over. Start as early as grade 9. Whether you want to send your child abroad or not, at least उसके बारे में information तो gather कर सकते हैं. और ऐसे educational fairs जो होते हैं ना, that is a place where you can get a lot of information. We have our panel discussions where the educators and the experts would be talking about this opportunities abroad, कैसे करना है, क्या करना है, is this a viable option, ये सब होगा. So, whether you want to plan your child studying abroad or not, but definitely you should come and attend it and understand a lot about it. Actually, this is the best, decision because मैं बताऊँ ना तो even I am working in a software industry and I see people who are at the age where their children are going outside. So what they do as a parent is they try to consult someone in the office. So we might not be the right person to tell you something. We might have information which is out of date because we are not up to date. We have left universities, years back, 10 years now. So I will not be the right person to tell you. So in such cases, you should always attend such seminars, such meet or such events where you, at least for your information, it is good that you should go and attend. You should know about what are the other career options which your child can take. तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ऐसे इवेंट में आप जाइए, जाकर एटलीस्ट इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इट इज नेवर गोइंग टू गो वेस्ट. आपको नहीं तो आपके किसी ना किसी रिश्तेदारों को काम आ ही जाएगा. इनफैक्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए भी, अवेयरनेस के लिए, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू गेट अपडेटेड विद व्हाट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी टॉपिक है. थैंक यू सो मच ज्योति फॉर कमिंग अप ऑन माई शो and updating my audience about the career counseling. It's my pleasure that I could come here and we could talk today about this and create awareness about this. And also I would like to thank you to invite me for this. Thank you so much. And we'll meet you again. And before we leave, I would like to request you everyone, if you have not subscribed to my channel, please don't forget to like, share and subscribe. We'll be coming back again with another topics related to career and we'll meet you soon. Thank you. Bye-bye. Bye. See you.